Good morning, everyone. I hope you are practicing whatever is being taught to you. We have completed question number 1 of exercise 5.4 and we will be completing complete exercise today. So let's start today's class with question number 2. Imran has 6 marbles more than 3 times the number of marbles Sohan has. Imran has 42 marbles. How many marbles does Sohan have? So let us take the number of marbles with Sohan to be x. हम मान लेते हैं कि सोहन के पास x marbles हैं. Now Imran has 6 marbles more than 6 marbles ज़्यादा हैं more than 3 times the number of marbles Sohan has. So therefore number of marbles with Imran are 6 more than 3 times the number of marbles Sohan has. ठीक. Also the number of marbles with Imran comes out to be 42. अब ये दोनों चीज कैसी है? इक्वल है. So 3x plus 6 is equals to 42. 3x equals to 42 minus 6. 3x is equals to 36. X equals to 36 divided by 3. 3 ones are 3, 3 2 are 6. So the value of x comes out to be 12. Therefore, the number of marbles with Sohan is 12. Number of marbles with Sohan is 12. अब हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार. 3x plus 6. So 3 into 12 plus 6. 12 3s are 36 plus 6. 42. तो इमरान के पास कितने मार्बल्स है? 42. हो गया वेरीफाई. देखो क्या बोला था? इमरान हैज 6 more than 3 times the number of marbles Sohan has. Also इमरान हैज 42 marbles. तो हमने दोनों को इक्वेट किया और उसके बाद सॉल्व किया. Question number 3. Divide 15 into 2 parts such that one part is 11 more than the other. हमको 15 को ऐसे डिवाइड करना है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से 11 ज्यादा है. So let us take one part to be x. Therefore, another part will be x plus 11 क्योंकि दूसरा पार्ट पहले पार्ट से 11 ज्यादा होना चाहिए. x plus 11 will come out to be 15. 2x plus 11 is 15. 2x equals to 15 minus 11 which is 4. So the value of x will be 4 upon 2 which is 2. तो क्या पूछा था? डिवाइड करना था. तो एक नंबर तो हो जाएगा 2. Therefore one part will be x which is 2. Another part will be x plus 11 which is 2 plus 11 13. और अगर तुम इसे वेरीफाई करना चाहो तो क्या था? x plus 11 2 plus 2 plus 11 कितना आ जाएगा? 15 which is equals to RHS. LHS equals to RHS, hence verified. Question number 4. The sum of 3 consecutive numbers is 33. कॉन्जिक्यूटिव क्या बताया था? लगातार आने वाले नंबर. तो अगर
तीन नंबर है तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। कैसे? 10, 11, 12, तो 10, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12। तो लेट अस टेक द numbers to be x, x plus 1, x plus 2। ले लिए हमने तीन नंबर्स। नाउ क्या बोला है? their sum is 33। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 33। ऐड करो x x x, 3x plus 1 plus 2 3 is equals to 33। 3x equals to 33 minus 3 which is 30। So the value of x is 30 divided by 3। 3 10s are 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। Therefore the numbers are x which is 10, x plus 1 which is 11, x plus 2 which is 12। चाहे तो हम क्या मिस कर सकते हैं इसे? वेरीफाई। कैसे करेंगे वेरीफाई? x plus 1 plus x plus 2, 10 plus 10 plus 1 plus 10 plus 2, आंसर आया 33 which is equals to RHS, hence verified। Question number 5। A son is 32 years younger than his father। एक बेटा अपने पापा से 32 years छोटा है। So let the age of father be x years। हमने मान लिया कि पापा x years के हैं, तो उनका बेटा कितना छोटा है? उनसे 32 years छोटा है। फाइन। The sum of their ages of father and the son is 52। Now the age of son will be x minus 32 years। क्यों? क्योंकि बेटा अपने पापा से 32 years कितना क्या है? छोटा। As per the question दोनों की एजेस का सम x प्लस x माइनस 32 कितना है? 52। अगर हम दोनों की एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ फादर एंड द सन इज 52। ठीक है, हमें क्या करना है? सन की एज निकालनी है। 2x इज इक्वल टू 52 प्लस 32। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 4 84। सो x की वैल्यू आ गई 84 डिवाइडेड बाय 2 42। Therefore the age of father is 42 years। Therefore age of father is 42 years and age of son is 42 minus 32 which is 10 years। तो मैं बोला कि बेटा पापा से 32 इयर्स छोटा है, तो हमने मान लिया कि फादर की एज x इयर्स है, तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 32। दोनों की एजेस का सम कितना आ रहा है? 52। ठीक, इक्वेशन को सॉल्व करो। फादर की एज आ गई 42 इयर्स। कैसे? क्योंकि हमने फादर की एज ली थी x की वैल्यू है 42, तो फादर की एज आ गई 42 इयर्स। तो सन की एज कितनी आ गई? 42 माइनस 32 विच इज 10। वेरीफाई कर लो। वेरीफाई कौन सी इक्वेशन से करते हैं? ये जो ये वाली इक्वेशन बनती है 42 प्लस 42 माइनस 32। ये 84 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 52, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6। The perimeter of a rectangular plot is 90 meters। ये rectangular plot है जिसका perimeter क्या है? 90 मीटर। perimeter का फॉर्मूला क्या होता है? rectangle के 2l plus b। ठीक, the length of this plot is 6 meter more than
twice its breadth. Let us take the breadth of plot be x meters. तो लेंथ कितनी हो जा रही है? लेंथ हो जा रही है, लेंथ will be 6 meters more than twice its breadth. This is length. आप क्या करोगे? पेरीमीटर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर के फॉर्मूले में डालो 2, लेंथ कितनी है 2x प्लस 6, ब्रेथ कितनी है x, और ये किसके बराबर है 90 के. 2 इंटू 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 90. 2 इंटू 3 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 90. 6x इक्वल टू 90 माइनस 12. 6x equals to 78, x equals to 78 divided by 6, 6 on the 6, 60 is 18. तो width कितनी आ गई? Therefore width is 13 meters and length is 2 into 13 plus 6, 26 plus 6, 32 meters. ठीक, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? 2, लेंथ कितनी थी? लेंथ आई है हमारी 32, विड्थ आई है हमारी 30. सॉल्व करो 2 इंटू 5 एंड 45, 90 मीटर्स. इसके बराबर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. अब इसको लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, ये लिखा और उसके बाद ये लिख दिया, नहीं, ये लिखना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद क्या करना है? वेरीफाई. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. A number consists of 2 digits. एक 2 डिजिट नंबर है. अब सुनो, यूनिट प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से, और टेंस प्लेस को 10 से. कैसे पता? बेटा बचपन में एक्सपैंडेड फॉर्म सीखी होगी, तो वहां पे हम यही करते थे ना. देन सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. अगर इन दोनों का सम 9 है तो ये मान लो कि एक नंबर x और दूसरा 9 माइनस x होगा. इन दोनों का सम निकालो, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स. सम कितना आ गया? 9. Therefore एक नंबर x और दूसरा कितना है? 9 माइनस एक्स. So let us take the number at unit place to be x. तो टेंस प्लेस वाला नंबर कितना हो जाएगा? नंबर एट टेंस प्लेस will be 9 minus x. Therefore the number becomes, नंबर क्या बन जाता है? 10 multiplied by 9 minus x plus x. तो ये 90 minus 10x plus x नंबर बना 90 minus 9x. Now according to question आ जाते हैं हम. If 9 is subtracted from the number, 90 minus 9x में से अगर हमने 9 subtract किया तो the digits are reverse. ये digit reverse हो जाएंगे. reverse हो जाएंगे मतलब यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ 9 minus x आ जाएगा. इसे हमें फिर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10. तो रिवर्स नंबर बन जाएगा. रिवर्स नंबर क्या होगा? 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स. तो 90 minus 9 is 81 minus 9x is equals to 10x plus 9 minus x. 81 minus 9x is equals to 10x minus x, 9x plus 9. So 81 minus 9 is equals to 9x plus 9x. ये कितना बना? 81 minus 9 is 72 is equals to 18x. x की वैल्यू 72 divided by 18. 9 to the 18, 9 8 the 72.
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4. Therefore, if the value of x is 4, x कौन सी डिजिट पे था, यूनिट डिजिट पे, तो 9 माइनस एक्स, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5. Therefore, the number is 54. क्या किया हमने, यूनिट्स प्लेस पे x लिया और टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स लिया. क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम कितना था 9. अब नंबर क्या बन गया, ये 90 माइनस 9x. अब अगर बोला कि इसमें से 9 माइनस कर देंगे ना हम, तो नंबर क्या बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा नंबर. सॉल्व किया हमने, x की वैल्यू निकाली और दूसरी 9 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, नंबर आ गया 54. वेरीफाई करना है, करके देखो वेरीफाई. यहाँ पे LHS RHS दोनों ही वेरीफाई करना होगा. LHS करो, 81 माइनस 9x, 81 माइनस 9x की वैल्यू कितनी आई है 4. सो 81 माइनस 36 45. फाइन, RHS निकालेंगे. RHS कितना है 9x प्लस 9 इंटू 4 प्लस 9, 36 प्लस 9 45. LHS is equals to RHS, hence verified. This is a very 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 important question. ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी देखने को मिलेंगे. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 8. Find the numbers such that one is 6 times the other and their sum is 49. Let one of the numbers is x. Therefore, another is 6 times of it. Another number क्या बन जाएगा 6x. Now, their sum is 49. According to question तुम्हें दिया हुआ है, इसका सम कितना है 49. तो x plus 6x is 49. 7x is 49. x is 49 divided by 7. 7 7 is 49. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7. आपको नंबर्स निकालना है. Therefore, the numbers are 7x which is 7 and 6x which is 6 into 7 which is 42. वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर लो. x प्लस 6x, x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 42 49. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. ये वेरिफिकेशन के लिए हमें अलग से करना है, इसकी इक्वल्स टू में नहीं है. वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर इसमें से कुछ तुम छोड़ ना दो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्लास वर्क एंड मेक नोट्स. मैंने आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराई है. सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस and if there is any doubt you can ask me. I think everything is clear in your mind. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.